from Tata classes also, है ना? So that whatever we have learned, it gets solidified. We get 100% out of it, है ना? In our memory also, right? So yes, Rudra. Yes, Rudra. Yes, Rudra. Give instruction for Omkaram. Okay. Join your hands and close your eyes and get ready for Omkaran. Sai Ram. Sai Ram. Sai Ram. Very good. Right, beta? Sai Ram. So, yes, beta. So right now we are studying about animals, है ना? In animals, particular in human beings, how this circulation takes place, है ना? Transport of substances. अभी तक हमने सीखा कि जो हमारा blood है, that है ना, transports what? The food which is digested, it transports oxygen, it transports carbon dioxide, नहीं बेटा, है ना? And how Sir, you are showing a video. वीडियो में दिखा रहा हूँ, वीडियो दिख रहा है कुछ नहीं? दूसरे दिन दिखा रहे थे वीडियो. हाँ हाँ, yes बेटा, I just you saw the videos, है ना? Now today let me present my screen. Okay बेटा, see the screen. Okay, I'm presenting. Can you see the screen? Yeah. Yes, sir. Yes बेटा. So आप बंद कर लो रुद्र, आपके माइक से इको आ रही है, आप रहने दो, किसी और को जिम्मेदारी देते हैं, वो बात करेगा. ठीक? हाँ, नाम बोलो. Sir, I. ठीक है, राघव. Sir, Anmol. राघव से करना दो बेटा, रुद्र की आवाज माइक में से इको हो रही है. राघव ठीक है. सर अब नहीं होगी, वो राघव मेरे पास बैठा था. अच्छा, इसीलिए हो रहा था. पास में बैठ, दूर बैठो. Yes, sir. अब नहीं आएगा. हाँ जी. So today we'll learn whatever we have learned. I mean about circulation in human beings. Once again, we learn through Tata classes. And if you have any question, note down, beta. The circulatory system, है ना? Yes, sir. Let us learn through this also. Yeah, can you see the screen? Yes, sir. Very good. So let me start it. If sound में check कर लो कितना है अभी. हाँ ठीक है, sound कम हो तो बताना मुझे, है ना बेटा? And note down. Any question, note down. Yeah. Circulatory system. Our bodies are made up of several systems that help in performing different functions. Sir, screen नहीं दिख रही. Transports blood throughout the body. देखिए. Sir, black हो. Transports nutrients, waste products, and chemicals such as hormones. हाँ, वीडियो नहीं चला ना? अरे सर वॉइस तो आ रही है बट वीडियो नहीं चल रहा. ब्लैक स्क्रीन आ रही है. let me check. Sir, freeze हो गई है स्क्रीन. हाँ, फ्रीज हो गई. फिर से मैं शेयर करता हूँ, है ना? लेट मी शेयर अगेन. आप बंद रखो रुद्र, या दूर बैठो दोनों. ओके. सर हम वीडियो कर रहे थे, ओके अब नहीं आएगी. लेट मी स्टार्ट अगेन बेटा. यस सर, अब हो गया, दिखने लगी स्क्रीन. हो जाता है कई बार. आप बंद रखो रुद्र. Circulatory system.
Yes, sir. आप देखिए. The box Good, of good, the good, very systems good. that help in performing Note down. different functions. Note down any question if you The want to human ask. circulatory system ठीक है बेटा, transports blood see the throughout the video, body. note down the questions. Along with blood, it also transports oxygen, nutrients, waste products, Sir, and अभी भी chemicals. screen share कर रही है. We have discussed all these. नहीं, everybody will not find this problem. Shubhra, Sir, it is Yes, clearly sir. visible. हाँ बेटा देखो, आपको प्रॉब्लम बताना मुझे. The circulatory system सर मुझे नहीं दिख रही इसकी. the heart and सर स्क्रीन लैग कर रही है. Sir, no, sir. it शुभ्रा, is- आप बेटा दोबारा ज्वाइन करो. सर स्क्रीन फ्रीज हो गई. यस सर. अभी मैंने अरे बंद किया, सर ने रोक रखा है, उसको सर ने स्टॉप कर रखा है. अभी मैंने बंद कर रखा है ना. आप अपना अपना नेटवर्क चेक करो. इट इज ओके बेटा, है ना शुभ्रा? इफ यू फाइंड डिफिकल्टी टेल मी. and tubes called blood vessels. The Sir, human now body it is is roughly clear. the size of a clenched fist. ओके बेटा, गुड. Its four chambers include two upper arteria and two lower ventricles. The blood flows from the arteria into the ventricles, and from there it is pumped out of the heart and into the blood vessels, where it can be carried throughout the body. There are two types of blood vessels, arteries and veins. Arteries carry blood away from the heart to the different organs in the body. As they near the organs, arteries will branch into networks of 5 tubes called capillaries. Blood exiting the organs will enter the capillary. टाटा क्लास में प्रॉब्लम है आज. Arteries, where they will join to form the other types of blood vessels, veins. We have problems, certain problems, है ना बेटा? इन टाटा क्लासेस ऑनलाइन प्रॉब्लम थोड़ा सा है, कोई बात नहीं. ध्यान से Carry blood from the organs or tissues back to the heart. Blood flowing वीडियो कट रही है ना शुभ्रा? from the veins will enter the upper chambers of the heart, the arteria, and flow down into the ventricles for circulation. Blood is a fluid tissue that flows through the blood vessels. It is made up of red blood cells, white White blood cells blood and cells, and platelets. platelets. All of these cells will be floating in the liquid plasma. Let's briefly look at how respiratory gases, oxygen and carbon There is a problem in the video बेटा, है ना? How is the exchange of gases? वीडियो थोड़ा पॉज हो चल रहा है. dioxide are transported through the circulatory system. वीडियो पॉज हो रहा है. टाटा क्लासेस में आज थोड़ा सा लगता है, so उसका नेटवर्क स्लो है बेटा, है ना? ओके, विल सी टू लेटर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, Yes, sir. है ना? आज छोड़ देते हैं इसको, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे इसको. इसको बंद ही कर देते हैं, है ना? लेट मी प्रेजेंट माय बुक. देखिए आप, बुक है आपके पास? सी द बुक बेटा. Sir, we have. Very good. So we have discussed all these things. I wanted to make it again so that you remember all the things. अभी बता रहा था ना, जो आर्टरीज होते हैं ये टिश्यूज में जाकर ब्रांच हो जाते हैं बेटा, एंड देन दे आर कॉल्ड कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज, और फिर ये दोनों यूनाइट होकर वेन को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना? वेरी गुड. सो ऑल ऑफ यू नाउ अंडरस्टूड व्हिच ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज. Oxygenated blood. वेरी गुड. ऑक्सीजनेटेड, और इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन रिच, द ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड वेन्स,
Deoxygenated वेरी गुड, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। अब देखिए हार्ट बीट हमने पढ़ा था, है ना, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स इज कॉल्ड हार्ट बीट। ओके बेटा, इट इज कॉल्ड हार्ट बीट, एंड टू लिसन द हार्ट बीट there is a device or instrument. What do we call this instrument? stethoscope. स्टेथोस्कोप। स्पेलिंग सही होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। स्टेथोस्कोप, Okay, sir. है ना, नहीं तो स्पेलिंग गलत होने से ये दूसरा वर्ड बन जाएगा। जैसे किसी ने मेरा नाम लिखा था SUGAR, तो मेरा नाम क्या हो गया? Sugar. शुगर हो गया। मैं शुगर हूँ, ये शुगर बना दिया उसने, है ना, तो गलत हो जाएगा ना पूरा बेटा। तो जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, राइट। अब देखिए स्टेथोस्कोप जो होता है, दैट, है ना, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ, क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टेथोस्कोप, ड्रॉ लेवल डायग्राम। तो डायग्राम बनाना, ये देखो, इट कंसिस्ट ऑफ, अंडरलाइन कर लो बुक में, स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस that carries a sensitive diaphragm, 2 earpieces and a tube joining the parts। ये होगा कंस्ट्रक्शन इसका। Got it? Any doubt? No, sir. चेस्ट पीस है, इट इज वेरी सेंसिटिव बेटा, बहुत सेंसिटिव होता है ना, ये हल्का सा भी अगर मूवमेंट हो रहा है तो डिटेक्ट कर लेता है ये। एंड चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायाफ्राम, ठीक है, इसी में डायाफ्राम होता है अंदर में, चेस्ट पीस के अंदर। देन देयर इज अ ट्यूब, दिस ट्यूब इज कनेक्टेड टू 2 ईयर पीसेज, ये 2 ईयर पीस है जो कान में लगाते हैं हम, है ना। चेस्ट पीस इज प्लेस्ड एट द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर वी वांट टू हियर द मूवमेंट, हियर द बीट। डॉक्टर्स जनरली ये पूरे रिब्स रीजन में, बैक रीजन में लगा करके, क्योंकि हमारे जब हमें सर्दी खांसी होती है ना बेटा, जुकाम होता है ना, तो जो लंग्स है इन सब में, और जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्स वगैरह में बलगम भर जाता है ना, उसकी वजह से सांस लेने में गड़गड़ की आवाज आती है, तो उसको वो सुन करके समझ जाते हैं कि इसको कफ भरा हुआ है। सर जब हमारी नसें ब्लॉक होती हैं तो डॉक्टर लोग वो पिन वगैरह से उनको उसमें क्यों ऐसे करते हैं? नहीं, नसें ब्लॉक होने का मतलब, अब नस बोल रहे हो तो फिर आप देखिए नर्वस सिस्टम में चले गए। दो तरह से नस बोलने का मतलब, नर्वस सिस्टम में पूरे बॉडी में नर्व्स का नेटवर्क है जो मैसेज को कैरी करते हैं और लाते हैं। जैसे अभी मैं आपको चिमटी काटूं तो आप चिल्लाओगे, है ना, जोर से। तो जैसे हमने चिमटी काटी तो यहाँ से नर्व्स के थ्रू मैसेज ब्रेन तक गया और ब्रेन ने तुरंत ऑर्डर दिया मुंह को चिल्लाओ और तब छोड़ेगा ये। हमने चिल्लाया, उसका रेस्पॉन्स आया, समझ रहे हो, ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन है। कई बार तो डिसीजन ब्रेन के पहले ही स्पाइनल कॉर्ड हमारी ले लेती है ना बेटा। तो आप ये कहना चाह रहे हो, नर्व्स कहना चाह रहे हो, या कई बार हमारी जो वेन्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज आता है, ब्लड जो है ना रुक जाता है, उसका फ्लो रुक जाता है, तो उससे प्रॉब्लम होता है बेटा। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, जो बताओ। सर क्योंकि मेरी मम्मा को प्रॉब्लम है इसलिए वो निटिंग करवाती हैं सर कोटा में। निडल? हाँ यस सर। निडल थेरेपी, अच्छा, दर्द होगा बेटा, है ना। पेन है क्या मम्मा को? यस सर, सर बैक में। हाँ, बैक पेन, वो एक थेरेपी है बेटा, वो एक इलाज है जिसको एक्यूपंक्चर बोलते हैं, समझे। एक्यूपंक्चर इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिजीजेज, जिसमें वो सुई चुभाते हैं और उससे जो फ्लो होता है ना, नर्व्स का फ्लो वो चालू हो जाता है और थोड़ी मिलती है। इसे एक्यूप्रेशर भी है, पॉइंट्स होते हैं, कई पॉइंट्स होते हैं, वहां प्रेस करते हैं तो जो नर्व्स डीएक्टिवेट है ना, वो नर्व्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर प्रॉपर नर्व्स की फंक्शनिंग होने लगती है, उसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर। ये सब ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ना, भारत का ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन है। और एक जो हमारा है एलोपैथी है, जो हमें पूरे बॉडी पार्ट्स को जानकारी देता है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करता है ना। तो ये मैं बता रहा था आपको, है ना बेटा, ये इसको हम लोग लगाते हैं, है ना,
Doctors can get clues about the condition of your heart by listening through a stethoscope. आपकी हार्ट सर स्टेथोस्कोप इलेक्ट्रिक भी होते हैं क्या? इलेक्ट्रिक, देखो आजकल डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लगा देने के बाद में आपको डिजिटली साउंड आ सकते हैं, तो दैट इज अनदर थिंग। बट जनरली हमको सिर्फ हार्ट की बीट सुननी है बेटा। अब जब आप बता रहे हो ना हार्ट की प्रॉपर कंडीशन जानना है, तो हम करते हैं इकोकार्डियोग्राफी, है ना, अल्ट्रासाउंड का यूज करके। तीन तरह के साउंड वेव होते हैं, एक जो हमें सुनाई पड़ते हैं और दूसरा हमें सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन वो भी है, वो दो तरह के होते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, और एक सुनाई पड़ता है जो हियरिंग रेंज है। एक्चुअली जो आपकी साउंड है ना बेटा, हाँ कहाँ गया, हाँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन है। इको से हम पल्स रेट जान सकते हैं ना? हाँ, वो जब इको कार्डियोग्राफी होती है ना, तो काफी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हार्ट के बारे में हमारा, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हार्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज में, है ना। तो मान लो फ्रीक्वेंसी किसी साउंड वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, मे बी लेस देन 20 हर्ट्ज, मोर देन 20 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज। तो हर साउंड की वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, इससे भी ज्यादा, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड। और इन बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज, जिसको हमको सुनाई पड़ता है। ठीक है बेटा, तो इकोकार्डियोग्राफी होती है हार्ट की, जो बता रहा था अभी वो, उसमें पूरा मॉनिटर पर, टीवी का मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर पर पूरा हार्ट कंडीशन डॉक्टर कैन सी एंड कैलकुलेट ऑल अबाउट इज देयर एनी ब्लॉकेज एट सम प्लेसेज, है ना, वो सब कुछ जानकारी मिलती है। तो उसके बारे में शायद वो बात कर रहा था। ठीक है बेटा, दैट इज नॉट ओनली स्टेथोस्कोप, वो एक पूरा डिवाइस है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। उसको करते हैं, उसमें हार्ट की पूरी कंडीशन जो हमें पता चलती है बेटा, है ना। ठीक है, गुड, ठीक है। तो आइए हम मॉडल बनाएं स्टेथोस्कोप को, है ना। क्या करना है आपको, बहुत आसान है। ऐसे फनल होगा घर में, है ना, फनल घर में केरोसिन ऑयल वगैरह ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, दुकान में मिल जाएगा। तो ऐसा फनल ले लीजिए, फनल लेकर के यहीं तक होता है फनल, उसमें एक ट्यूब होगा, पतला सा ट्यूब लगा दो, लंबा हो जाएगा फनल में। और जो फनल का माउथ है यहाँ पर, इसमें एक बलून लेकर स्ट्रेच करके उसको धागे से बांध दो या सेलो टेप लगा दो, जैसे चाहो तो उसको फिक्स कर दो, बस योर स्टेथोस्कोप इज रेडी। सिंगल ईयर पीस का बनेगा, आप चाहो तो 2 ईयर पीस का बना सकते हो, 2 डिवाइड करके 2 पाइप लगा दोगे, दोनों पाइप मिला करके बना सकते हो आप। अब आप उसको चेस्ट पे रख के, ये तुम्हारा क्या हो गया, चेस्ट पीस हो गया। इसके अंदर सेंसिटिव डायफ्राम होता है, इसके अंदर डायफ्राम होता है सेंसिटिव, राइट। अब आप कान में लगाओ तो आपकी हार्ट बीट बड़ी आसानी से सुनाई पड़ेगी। एक्चुअली इसको बनाने के लिए पता है कैसे कैसे, इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है, पढ़ना कभी गूगल वगैरह पर डाल के पढ़ोगे। हुआ क्या था, एक डॉक्टर के पास में एक पेशेंट आया, तो डॉक्टर को उसका दूर से सुनना था, उसका हार्ट बीट बड़ा मुश्किल था। तो डॉक्टर ने पता है क्या किया, उसने एक अखबार लिया, उसको ऐसे गोल पाइप जैसा बनाया और इस तरह से करके उस आदमी के चेस्ट के पास रखा और फिर कान लगा सुनने लगा। आप भी करोगे ना, किसी अपने छोटे भैया, छोटी दीदी, मम्मी पापा का ऐसे पेपर का ऐसे पाइप जैसा बना लो और उनके हार्ट पे, चेस्ट के पास रख के और सुनने की कोशिश करो, देखो आप क्या सुन पाते हो, करके देखना है, करोगे? सर सुनाई देती है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो वॉइस प्रोड्यूस क्यों नहीं करते हैं? इंसेक्ट्स जो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं ना, वो अपने पंखों को टकरा करके और वाइब्रेशन जो पंखों से होती है उससे आवाज निकलती है, ठीक है। अपने माउथ से क्यों नहीं करते सर? देखो
देखो भाई, हम लोग माउथ से कैसे कर पाते हैं, पता है कैसे होती है? हम कैसे बोल पाते हैं? ये देखो हमारा वॉइस बॉक्स है यहाँ पर थ्रोट रीजन में, है ना? पर उनके मुंह ये में voice- लैरिंग्स नहीं होता इसलिए। हाँ, ये लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स बोलते भी। और इसके अंदर में दो वोकल कॉर्ड्स हैं, दो पतले पतले तरह से थिन शीट्स हैं, और लंग्स से हवा फोर्स करके उस स्लिट से बाहर निकलती है और तब आवाज आती है जो हम बोल पाते हैं। ऐसा उनमें नहीं होता बेटा, इनसेक्ट में, है ना? आप भी चाहो तो एक बलून ले लो, बलून होगा घर में तुम्हारे रखा हुआ, तो बलून को अच्छे से फुला लो। फुलाने के बाद क्या करो, यहाँ पर अच्छे से पकड़ लो, नेक के पास में, नेक के पास में पकड़ के थोड़ा सा जरा से चौड़ा करके और थोड़ा सा हवा निकलने दो। देखो आपको साउंड आती है, उसको और थोड़ा फैला के पकड़ना, कम भी ज्यादा करना, ऐसे स्ट्रेच करके। क्या साउंड बदलती है? करके देखना, आज करोगे? यस सर। हाँ, तो आप देखोगे ये हमारा लंग्स हो गया, और यहाँ पर समझ लो वॉइस बॉक्स है, तो यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन भी दिखाई देगा आपको। और वो जब आवाज जाती है यहाँ से, दो होते हैं वोकल कॉर्ड्स, वो दोनों वाइब्रेट करते हैं, वो साउंड निकलती है। और फिर हम अलग अलग कैसे बोल पाते हैं? तो ये मुंह के अंदर स्ट्रक्चर है, टंग हमारा है। जब जैसे आप बोलो कोई भी क ख ग घ, जोर पड़ती कंठ पे, नो कंठ वर्ण बोलते हैं। इस तरह से आप मुंह खोल के ता था दादा बोल के सुना दो, ता बोलोगे तो टंग जो है दांत को स्पष्ट, दांत को आपने पढ़ा होगा हिंदी में, मैम ने पढ़ाया होगा हिंदी व्याकरण में, दंत वर्ण, स्पर्श वर्ण पढ़ा है? सर यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं तो वाइब्रेशन पता चल रहा है, यहाँ पे टच कर रहे हैं तो बोलते हुए। तो यहाँ पर हाथ रख लो और कुछ भी बोलो, सागर सर, देखो आपको वाइब्रेशन यू विल फील द वाइब्रेशन। शांति देखो है ना, वाइब्रेशन आ रही है यहाँ पर, शांति। ये वाइब्रेशन जो है ना आ रही है। गुड बेटा, चलो ठीक है। इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता बेटा, लेकिन इंसेक्ट अपने पंखों को टकराते हैं, उससे वाइब्रेशन होता है। और दैट वाइब्रेशन इफ इट इज इन द ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज क्या हमारा है? इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इन दोनों के बीच का जो रेंज है वो ऑडिबल है। इससे कम हो गया तो हो जाएगा इंफ्रासोनिक साउंड, जो सुनाई नहीं पड़ता हमें। इससे ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड, वही सुनाई नहीं पड़ता हमें, लेकिन वो सब प्रेजेंट है। डॉग्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स, कुत्तों को ये इतना से ज्यादा के भी सुनाई पड़ता है, इसलिए कुत्ते बहुत चौकन्ने होते हैं, तुरंत जरा से आहट पाता उठ जाते हैं वो, है ना बेटा? खैर, तो ये बनाना सभी लोग, ये मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ठीक है, राइट? अब इसका यूज करके क्या होता है, आप अलग अलग हार्ट बीट, पल्स रेट मेजर कर सकते हो। आफ्टर रनिंग 4-5 मिनट दौड़ा दो, फिर नोट करो, रेस्ट में नोट करो, एंड कंप्लीट दिस टेबल, राइट? Okay beta, record your pulse etc, so that you can do. Now the question comes, Bujo wonders if sponges and hydra also have blood. Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. इनमें होता है नहीं बेटा, sponges, hydra, they do not have circulatory system. Then how is the substances transported in their body? So this happens in the water. जिस पानी में ये रहते हैं, ये लोग aquatic animals हैं, तो ये the water in which they live brings food and oxygen as it, है ना, enters the body. ठीक है बेटा? The water carries away waste material also, and carbon dioxide it moves out. So the animals do not need a circulatory fluid like the blood. ऐसा में डायरेक्ट क्या करते हैं, वो पानी को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, और पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वो उनके टिश्यू में चला जाता है, उनके टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में आ जाता है, पानी के साथ बाहर निकल जाता है, फिर जो वेस्ट होता है वो भी पानी में चला जाता है और पानी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है बेटा? कोई पूछेगा व्हाई डू स्पॉन्जेज एंड हाइड्रा डू नॉट नीड ब्लड, क्या बोलोगे? They do not need blood because the water in which they live that brings food
ऑक्सीजन, है ना, as it enters in their body. Similar way, waste materials are also taken out. ठीक है बेटा? Now, one more thing. ये बॉक्स देखिए, सबसे पहले बहुत बड़े हमारी जो नॉलेज है ना बेटा वो धीरे धीरे बढ़ती गई और हम आज इतना कुछ जान पाते हैं। पहले अलग अलग तरीके की बात थी। एक सर थे, इंग्लिश फिजिशियन डॉक्टर थे, विलियम हार्वे। ही डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। उन्होंने पहली बार ढूंढा कि ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है ना। तो इनको रिडिकुल भी किया था लोगों ने, इनका मजाक उड़ाते थे, अखबारों में कार्टून छपते थे, इनका नाम ही रख दिया था मिस्टर सर्कुलेटर। विलियम हार्वे का नाम है ना। द करेंट ओपिनियन इन दोज डेज वाज दैट, उस समय के लोग मानते थे ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे आप स्केल ले लो, आप स्केल को आप ऐसे टेबल पे रख दो और स्केल पे से दबा के छोड़ दो, क्या होता है देखो, वाइब्रेट कर रहा है बेटा। हेलो साईराम। यस सर। ना तो उन्होंने कहा ना कि ऐसे ब्लड ऑसिलेट करता है, पूरे ब्लड जो मूव नहीं करता पूरे बॉडी में। विलियम हार्वे ने पहले बार बताया, कब बताया था? 1578 उनका जन्म हुआ था, उनका डेथ हो गया। उन्होंने ये बताया कि नहीं, ब्लड फ्लो करता है, और उन्होंने लोगों ने उसका बहुत ही मजाक उड़ाया था उस समय, मिस्टर सर्कुलेटर नाम रख दिया था। हार्वे वाज रिडिक्यूल्ड, देखो, एंड वाज कॉल्ड सर्कुलेटर, मिस्टर सर्कुलेटर। स्पेलिंग सही नहीं लिखा हुआ। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स, उसके सारे पेशेंट भाग गए उनसे, डॉक्टर पागल है ये। हार्वेज आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वाज जनरली एक्सेप्टेड एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट, आज वो फैक्ट है। ठीक है बेटा? नाउ लेट अस लर्न। अभी तक हमने देखा कि डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ आर दीज ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी। कोई डाउट है इसमें? बोलो। हमारा जो फूड हम खाते हैं, डाइजेशन के बाद ये डिफरेंट सेल तक कैसे पहुंचता है? थ्रू द ब्लड, है ना बेटा? आपने पढ़ा होगा ये। On the inner walls of the small intestine, there are thousands of finger-like projections called villi. Very good. और हर विलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स सराउंड रहते हैं। तो जो फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड, वो स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई से ब्लड वेसल्स में आते हैं, और फिर ब्लड से होता हुआ पूरे, है ना, सेल तक जाते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन बताया आपने कि अल्वियोलाई में से डिफ्यूज होकर के ब्लड वेसल्स में आते हैं, फिर वहां से हार्ट में आते हैं, फिर हार्ट पंप करता है, पूरे बॉडी तक जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से वेन्स में जाता है, वेन्स कलेक्ट करके हार्ट को देता है, हार्ट पंप करके किसको देता है? लंग्स को देता है। लंग्स में जो अल्वियोलाई होते हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई के अंदर आता है, ब्लड वेसल्स बनाए जाते हैं, और फिर CO2 कम्स आउट। तो इतना तो आपने समझ लिया था। अब सवाल उठता है, अच्छा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, नहीं? जो हम खाना खाते हैं, जो नहीं पचता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से रेक्टम में जाता है, रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। लेकिन देयर आर लिक्विड वेस्ट आल्सो प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में लिक्विड वेस्ट भी बनता है, जो कि यूरिन इसको बोलते हैं। यूरिन, हम जाते हैं ना यूरिन करने के लिए, यूरिनेशन के लिए जाते हैं बीच बीच में। इसके अलावा हमें स्वेटिंग आती है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है हमारे बॉडी में बेटा। So when our cells perform their functions, certain waste products are released. कुछ वेस्ट निकलते हैं, these are toxic, ये जहरीले होते हैं बेटा, and hence need to be removed from our body. इसलिए बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो they can make our organs working faulty. हमारे ऑर्गन सही काम नहीं करेंगे, और कभी कभी तो डेथ भी हो सकती है हमारी। So the process of, underline, the process of removal of waste produced in the cells of the body is called
एक्सक्रेशन आपने पढ़ा होगा वहाँ भी, है ना, चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे हम लोग। This is the last step of nutrition, holozoic nutrition, the mode of nutrition in which nutrients are derived from solid food is called holozoic nutrition, and there are certain steps in the holozoic nutrition. कोई बताएगा what are the different steps? Anyone? Ingestion, digestion, absorption, assimilation, Addition. Accumulation. Addition. last excretion. नहीं, last one is excretion. So how do we define excretion? The process of removal of waste produced in the cells of the living organism is called excursion. excretion. Okay, Called beta? excretion. Excretion. And for excretion, we have a system of organ which is called excretory system. क्या बोलते हैं? Excretory system. ठीक है बेटा? जैसे आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन चैप्टर में, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, याद आ रहा है? बोलो बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा कि नहीं? जिसमें आपने लंग्स का डायग्राम बनाया था। तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है टू टेक आउट द टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, तो हमारे बॉडी में एक तो सॉलिड वेस्ट तो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, नहीं? ठीक है बेटा, गैसेस वेस्ट निकल गया इन द फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो लिक्विड वेस्ट बनता है, हाउ इज दैट टेकन आउट, हाउ इज दैट एलिमिनेटेड? एंड फॉर दैट Sir, it was taken out by the kidney. Kidney, very good beta. The waste which is present in the blood has to be removed from the body. ब्लड में भी वेस्ट बनता है जो पड़ा रहता है, और उसको भी निकलना बहुत जरूरी है बेटा। Yes, sir. है ना? अब मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, तो ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। भाई ब्लड तो लिक्विड जैसा है, लिक्विड में अगर कोई इम्प्योरिटी है तो फिल्टर कर, जैसे पानी में कोई इम्प्योरिटी है तो क्या करते हो आप? फिल्टर कर देते हो पानी को, है ना? सो द मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज करते हैं, और किसमें करते हैं? किडनी में करते हैं। सो किडनी इज द, अगर ये खून किडनी, अगर सर किसी की किडनी खराब रहती है तो अगर खून साफ नहीं हो पाता तो सर उसे डायलिसिस करवाना पड़ता है। हाँ बेटा, फिर वो वेस्ट जमा रहता है ब्लड में, फिर धीरे धीरे करके पेशेंट बेहोश हो जाता है, फिर इवन डेथ हो सकती है अगर किडनीज काम करना बंद कर दे तो। वी हैव 2 किडनीज, हमें पेयर ऑफ किडनी है, एक ये 2 किडनी होती है जो पीरियोडिकली एक काम करता है तो एक रेस्ट करता है, दूसरा काम करता है तो पहला रेस्ट करता है, इस तरह से। एंड इट्स वर्क इज टू फिल्टर द ब्लड, है ना? किडनी का फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। हाँ बेटा, राइट। सो किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे। When the blood reaches the 2 kidneys, it contains both useful and harmful substances. किडनी में, लेकिन किडनी क्या करती है? The useful substances are absorbed back into the blood. जो यूजफुल सब्सटेंस है वो ब्लड में रुक जाता है, and the waste जो हार्मफुल है that dissolved in water are removed as urine. वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं बॉडी से। From the kidneys, the urine goes into the, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर देखो पूरा, ये डायग्राम बनाना सबको है, ये डायग्राम, draw this diagram, all of you. ये human excretory system, it contains a pair of kidney, और किडनी से होकर 2 ट्यूब निकल रहा है, इसको बोलते हैं यूरेटर, and these ureter goes into a urinary bladder, and at the mouth of the urinary bladder it is urethra and urinary opening. So first of all ये दो दिख रहा है। हाँ सर डायलिसिस सर वापस बता दीजिए।
डायलिसिस तो अभी बताया नहीं मैंने, डायलिसिस बता रहा हूँ बेटा, अभी तो रुको ना, पहले ये समझ लेना हम लोग, ये समझ लें किडनी के बारे में, है ना। अब किडनी के अंदर में भी क्या होते हैं, टाइनी फिल्टर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? सर किन्हें? किडनी के अंदर मार्केस रीड। नहीं बेटा, किडनी के अंदर भी छोटे छोटे टाइनी फिल्टर्स होते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? सर नेफ्रॉन। हाँ देखो, सर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, एक्चुअली फिल्टर काम नेफ्रॉन्स करते हैं, नेफ्रॉन्स, है ना। सर छोटी छोटी जालियों की तरह रहते होंगे सर वो। ये, और इसमें दो, एक रेनल आर्टरी है और एक रेनल वेन है, ये रेनल आर्टरी, रेनल वेन, है ना। या सर राइट साइड में सर हमेशा सर वेन रहती है या फिर लेफ्ट साइड में सर आर्टरी? तो ज्यादातर ऐसा नहीं, पूरे बॉडी में है बेटा। अभी आप देखिए, ये पूरा मैं दिखाता हूँ नेफ्रॉन के बारे में। ये है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिख रहा है, ये दोनों किडनी हो गए, ये है रेनल वेन, ये रेनल आर्टरी, और ये इस तरह से कैरी करके हमारा यहाँ तक लाता है। ये देखिए मैकेनिज्म में, ये देखिए किडनी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होता है पूरा। अगर किडनी को हम कट करें, कार्ड के अंदर देखें तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द किडनी, है ना। इसमें से ये जो है हमारा, ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन। इस तरह से नेफ्रॉन हमारा है, इसके अंदर ब्लड जाते हैं और वेस्ट फिल्टर होकर यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो ब्लैडर में चला गया, और जो जो यूजफुल सब्सटेंस होता है वो स्टोर रहता है यहाँ पर हमारा, स्टिल रहता है, ब्लड में रह जाता है, ठीक है। देखिए, है ना। तो ड्रॉ दिस डायग्राम बेटा, सब लोग डायग्राम इसको बनाइए पूरा अभी फटाफट, है ना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब मैंने कई बच्चों को देखा, पूछा ड्रॉ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और बना देता है पता है क्या, रेस्पिरेटरी का डायग्राम बना देता है। पूछा ड्रॉ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बना दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। आप भी ऐसा करोगे क्या? नहीं, आप ऐसा मत करना बेटा, है ना। अब जो यूरिन निकलता है हमारा, ये यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। यूरिन का कंपोजिशन ये याद रखना बेटा, ये यूरेथ्रा है हमारा, ये यूरिनरी ब्लैडर है नाम, ये यूरेटर बोलते हैं, ये किडनी हमारा हो गया, है ना। ये देखिए, एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेज अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर। 1 से लेकर 1.8 लीटर तक यूरिन हम पास करते हैं 24 घंटे के अंदर। यूरिन में क्या क्या होता है, लिख लो बेटा, 95% वाटर होता है, 2.5%, 20 नहीं, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आप बात कर रहे थे कि समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजुरी, कई बार चोट लगने से या बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन किडनीज डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड किडनी फेलियर, किडनी ने काम करना बंद कर दिया। देन वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी, ब्लड, तो ब्लड में जो वेस्ट होता है वो जमा रह जाता है, फिर इससे पेशेंट बहुत बीमार हो जाता है, मरने की नौबत आती है। इन दैट केस, इन केस ऑफ किडनी फेलियर, द ब्लड इज फिल्टर्ड periodically through an artificial kidney which is called dialysis, ठीक है बेटा। तो उसमें एक केमिकल होता है, उसमें ब्लड को डाल देते हैं, उस वहां पर जो वेस्ट है वो केमिकल में रह जाता है, तो जो ब्लड बाहर निकलता है वहां से, that blood is free from the waste and that is again given to the patient। सर मैं देख चुका हूँ सर डायलिसिस कैसे होता है सर, क्योंकि सर मेरे ताऊ है गुना में बड़े, हाँ, उनके बेटे को डायलिसिस होता है सर। अच्छा, उस किडनी में प्रॉब्लम होगा, है ना बेटा।
यस सर, उनकी बोथ किडनी फेल है दोनों। देखो सबसे बड़ी बात है ना, हम लोग जो पानी पीने में कई बार कंजूसी करते हैं। अभी जैसे ठंड के दिन है, ठंडा पानी ठंडा कैसे पिए हम, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। हमें यस सर। 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए बीच बीच में। कई बार आप स्कूल में पानी लाते थे घर से और वैसे पूरा का पूरा बोतल वापस घर ले गए, या बीच में कुछ पौधों को दे दिया। तो भाई उतना पानी आप लाए थे किस लिए, पीने के लिए लाए थे ना, आपको पीना चाहिए था बीच बीच में, है ना बेटा। तो ध्यान रखना है, वी शुड ड्रिंक वाटर, क्योंकि हमारे बॉडी का लगभग 70% वाटर है बेटा। पूरे हमारा अगर वजन 100 किलो हो तो 70 किलो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, पानी है सिर्फ। पानी। तो ये पानी का मात्रा बनाए रखना पड़ेगा ना हमको। जो लोग पानी कम पीते हैं या जिनको दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहले आपको जो यूरिन है उसका कलर येलो कलर का हो जाएगा, एंड यू मे फाइंड सम डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, पेनफुल हो सकता है वो। समझ जाइए कि हमारे किडनी में अच्छे से या तो पानी की कमी हमारे बॉडी में, डिहाइड्रेशन है, तो हमें इस तरह से किडनी का भी ख्याल रखना है। ठीक है बेटा। सर हाँ बोलिए। सर जब किसी को अगर डायरिया हो जाता है तो उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना। हाँ बेटा, डायरिया में क्या होता है कि भी या तो हमें बार बार उल्टी आती है या बार बार हमें पतले दस्त होते हैं, हमें फ्रीक्वेंटली पास आउट स्टूल, लिक्विड स्टूल। तो हमारे बॉडी का जो वाटर है ना, सेल का पानी है ना, वो भी बाहर निकल जाता है हमारे बॉडी से। सर तो वेट हमारा कम हो जाता है उससे। उस समय हमें पानी की जरूरत पड़ती है बेटा। तो ORS घोल जो होता है ना, ORS, ओरल सॉल्यूशन। ओरल रेडिएशन सॉल्यूशन। हाँ, इसको लेते रहना चाहिए हमें बीच बीच में, उस समय छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। सर नहीं तो हाँ बेटा सर बोलो। आपने कहा कि हमारे बॉडी में अगर 100 किलो हमारा वेट है तो 70 किलो पानी है, तो अगर हमें डायरिया होगा तो हमारा पानी तो कम हो जाता है ना, तो बॉडी में फिर वेट भी कम होगा ना। हाँ बेटा, उस समय बहुत ही हमारा मुंह सूखने लगता है, बॉडी में क्रैम्प्स आने लगते हैं, एकदम बहुत पेनफुल हो जाता है। तो उस समय डॉक्टर्स हमें, जब बहुत एक्यूट होता है, पानी ORS दिया भी उल्टी कर दिया उसने, तब क्या करोगे। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, थ्रू द वेन के थ्रू वो फिर दवाइयाँ देते हैं, सलाइन करते हैं, सलाइन वाटर देते हैं, ताकि उसकी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन सेल जो पानी लूज कर चुका है वो वापस उसको पास जाए और फिर नॉर्मल फंक्शन करने लगे। इसको हम पानी चढ़ाना बोलते हैं। कहते हैं कई बार डॉक्टर पानी चढ़ाते हैं, सलाइन करते हैं, फिर डॉक्टर ग्लूकोज भी देते हैं। बहुत वीकनेस है, डॉक्टर ग्लूकोज भी देते हैं थ्रू द वेन्स, डायरेक्ट ब्लड में ग्लूकोज देते हैं फिर। ठीक है। यस सर। हाँ है ना। सो ये हमारा ब्लड फिल्टर करने का तरीका हो गया। ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू किडनीज एंड द होल सिस्टम इज कॉल्ड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, फिर आप पूछ रहे होंगे सर कई सारे एनिमल्स जैसे फिश वगैरह होती हैं, इनमें कैसे होता है, ये कैसे बाहर निकालती हैं अपना वेस्ट। फिर आपने देखा होगा छिपकली वगैरह घूमते रहती है। जो बर्ड्स वगैरह हैं, ये जो स्टूल पास करते हैं ना, जो बीट करते हैं ना, उसके थ्रू एक्सक्रीशन में निकालते हैं। तो देखिएगा, द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना पानी उनको अवेलेबल है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस excrete सेल वेस्ट एज अमोनिया, याद कर लो, अमोनिया के फॉर्म में वो पानी में ही छोड़ देते हैं जो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। aquatic animals सारे जितने like fish, some land animals like birds, lizards, snakes, they excrete a semi solid substance, white कलर का होता है, जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड। कई बार आप देखते होंगे पेड़ के नीचे खड़े हो, ऊपर से बीट आई और अपने कपड़े पे गिरा, तो व्हाइट रंग का कलर का धब्बा छोड़ जाता है वहां पर, अगर हम तुरंत दिख रहा है। हुआ कभी, देखिए कभी बेटा। यस सर। है ना। और हमारे बॉडी में मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया होता है, यूरिन के साथ में निकलता है। कितना परसेंट, 2.5% यूरिया होता है ना।
ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट, अच्छा ये जो स्वेट होता है हमारे पास, स्वेटिंग होती है, हमें मालूम है तुम्हें, जितनी ज्यादा गर्मी होता है पसीना निकलता है, फील किया कभी, यस सर। है ना? तो जब स्वेट इवेपोरेट होता है, पसीना निकला तो पसीना सूखता है ना, तो हमारे बॉडी की हीट को लेके जाता है और हमें अच्छा महसूस होता है। कभी जोर से पसीना आ जाए ना तो बैठ जाओ कहीं पे चुपचाप से, या पंखे के नीचे बैठो तो आपको भी ठंडा लगने लगता है, या थोड़ा फैन कर लो, है ना, तो ठंडा लगता है हमें, क्योंकि इवेपोरेशन होता है। स्वेट आने का मतलब है कि वो आपकी बॉडी बहुत गर्म हो गई थी, कूल करना चाह रहा है, कूलिंग का प्रोसेस है ना? When we sweat, it helps to cool our body. क्योंकि जब स्वेट आएगा फिर उसका इवेपोरेशन होगा, एंड एवरी इवेपोरेशन इज फॉलोड बाय कूलिंग। जैसे मटके में, मटका घर में होगा, मटका रखा हुआ, तो मटके में जो पानी होता है वो ठंडा कैसे हो जाता है, बोलो? सर क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हाँ, और ये पोर से पानी रिसता रहता है, और वो पानी भाप बन के बाहर उड़ता है, और उसके लिए जो एनर्जी है वो पानी के अंदर से हीट लेके जाता है, तो पानी अंदर की ठंडी हो जाती है, इवेपोरेशन। तो वैसे स्वेट, हमारी जो स्वेट, हमें जो पसीना आता है वो हमारे बॉडी को कूल करता है, और साथ में हमारे बॉडी का वेस्ट भी बाहर जाता है। याद रखना, पसीने के साथ थोड़ा सॉल्ट भी जब बाहर निकलता है। कितने लोगों ने देखा है कि गर्मी के दिनों में यहाँ पे अगर कलरफुल शर्ट पहने हो तो व्हाइट व्हाइट पैच बन जाते हैं, उजले उजले धब्बे बन जाते हैं पैंट पे, शर्ट के ऊपर में, खास करके ये रीजन, आर्मपिट के रीजन में। हुआ है कभी, नोटिस किया है? बोलो बेटा। एक्चुअली पसीने के साथ कुछ सॉल्ट निकलते हैं, पसीना सूख जाता है कपड़े के ऊपर, और सॉल्ट की वजह से कुछ ज्यादा धब्बा दिखता है। ब्लू कलर के शर्ट या पैंट में, ब्लैक कलर के पैंट शर्ट में ये बहुत साफ साफ दिखता है, अगर हमने अच्छे से धोया नहीं कपड़ों को तो। ओके, अगली बार हम पढ़ेंगे, है ना, एंड विल ट्राई टू लर्न ऑल दिस थिंग्स अगेन थ्रू द वीडियो, थ्रू टाटा क्लासेज ऑनलाइन से पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये, अभी हमने सोचा था ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन प्लांट, प्लांट में कैसे होता है सब चीज, पौधे कैसे करते हैं ये। ठीक है बेटा, सो आई थिंक टाइम इज ओवर, है ना? लेट अस कंक्लूड बाय चैंटिंग शांति पाठ, है ना, एंड हैव क्वेश्चंस, विल डिस्कस इन द टुमारो, विल डिस्कस दैट, है ना? कल हम लोग कोशिश करेंगे फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल, जैसे ह्यूमन बीइंग को और से समझे एक बार, और फिर हम विल हैव इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है बेटा, चलो कौन कराएगा शांति पाठ? स्टार्ट। शुभ्रा, कैन यू डू? यस बेटा, डायग्राम होमवर्क आज का है, ड्रॉ द डायग्राम, है ना बेटा? डायग्राम बनाना है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का और ह्यूमन हार्ट का, ठीक है, अच्छे से। ओके बेटा, लीव। सायराम सर। ओके।